Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying theory base of accounting and accounting standards. आज हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IND-AS. इंट्रोडक्शन इसका हम पहले पढ़ते हैं. इंडिया इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग IFRS डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इक्विवेलेंट टू IFRS. अपना बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS के तहत. Thus, Ind-AS or the Indian Accounting Standard can be said to be converged standards of IFRS. IFRS का जो स्टैंडर्ड था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको कन्वर्ज करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया. These accounting standards are known as Indian Accounting Standards or IND-AS. IND-AS are notified under the Companies Act 2013 and are applicable to companies जिनका ये important question है. Listed on the stock exchange in India, जो कंपनी इंडिया में stock exchange में listing हो रखा है. Having net worth of 250 crores or more, 250 करोड़ का कैश कैपिटल है या उससे ज़्यादा है. और इसी 250 करोड़ वाले कंपनी का टू देयर होल्डिंग कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी या 250 करोड़ का कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनीज, इनके साथ वो एसोसिएटेड है. बिसाइड्स द अबव कंपनीज, अदर कंपनीज में आल्सो अडॉप्ट IND-AS वॉलंटियरली. बाकी कंपनी IND-AS को वॉलंटियरली अडॉप्ट कर सकते हैं. The objective behind issuing IND-AS is to prepare financial statements of a company on the lines of internationally accepted accounting principles and practices and complying with the country's business environment and laws. Business environment and law के साथ compare करके international accounting standard को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ये जो है IFRS उसके जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसको कन्वर्ज करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना. द डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND-AS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS. द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन IND-AS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एज फॉलोज. IND-AS एंड नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. The IND-AS are principle based. ये first one. The IND-AS are principle based accounting standards, while accounting standards are rule based accounting standards. Normal accounting standard rule based accounting standard होता है. Balance sheet is prepared by the company on which IND-AS is not applicable. जिसके ऊपर IND-AS applicable नहीं है. According to Schedule 3 of the Companies Act 2013, it means a balance sheet item should be depicted under the prescribed head. ये balance sheet एक prescribed head के नीचे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दिखाया जाएगा. prescribed head, इस head के नीचे ये आइटम आएगा. शेयर कैपिटल के नीचे ये आइटम होगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लायबिलिटी साइड में ये आइटम होगा. In contrast to this, IND-AS do not prescribe any form for balance sheet. तो कोई balance sheet का form prescribe नहीं करता. They prescribe that items may be shown in the balance sheet in accordance with the principles associated with them. तो जो principle उसी item के साथ associate हो रखा है उसी हिसाब से दिखाया जाएगा. For example, redeemable preference shares are shown under the main head share capital. Under Schedule 3 of the Companies Act 2013, but it is shown as a loan because it carries fixed rate of a dividend and also must be redeemed in accordance with the terms of issue, but not later than 25 years from the date of issue. तो redeemable preference shares 25 साल के अंदर डेट ऑफ इशू से रिडम्पशन हो जाएगा और उसके फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है. तो इसलिए लोन के अंडर दिखाया जाएगा बोल रहे हैं. IND-AS requires that since it is in the nature of loan, it should be depicted under the term main head loan. ये लोन के नीचे
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या खाली प्रेफरेंस शेयर्स दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आजकल इरिडीमेबल इशू नहीं होता है। तो नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट वन, सेकेंड, IND-AS involves fair value concept while accounting standards are based on historical concept. IND-AS involves fair value concept, बोल रहे कि fair value दिखाया जाए, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा बोलता है कि नहीं नहीं, जितने में खरीदा है उतने में दिखाया जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में एक्चुअली खरीदा। Unlike accounting standards, IND-AS prescribes that assets and liabilities of the company may be shown at their fair value at the date of the balance sheet. बैलेंस शीट के दिन पे ये मार्केट में ये एसेट कितने में बिकेगा उस वैल्यू में होना चाहिए। बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शुड बी वैल्यूड एट अ फेयर वैल्यू। दस इन इफेक्ट व्हेन फेयर वैल्यू इज अडॉप्टेड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, depreciation is not charged on the cost of the asset, but it is valued on the date, and the difference in the opening and closing valuation is debited or credited to profit and loss account। अगर एक एसेट का वैल्यू 10 लाख था, एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कर दिया 12 लाख हो गया, 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 10 लाख का फिक्स्ड एसेट और एंड ऑफ द ईयर वैल्यूएशन हो रखा है 9 लाख, तो 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये फेयर वैल्यू बेसिस होता है। इट मीन्स एवरी एसेट एंड ऑल्सो एवरी लाइबिलिटी व्हाइल टू बी वैल्यूड और डिस्काउंटेड एवरी ईयर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो IND-AS बोल रहा है कि फेयर वैल्यू बेसिस पे दिखाना है, बट AS बता रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे कि नहीं नहीं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाया जाएगा। मीनिंग ऑफ IND-AS, IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? IND-AS आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स notified under the Companies Act 2013 that converge with the International Financial Reporting Standards IFRS के साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज करके IND-AS बनाया। IND-AS are based on sound and clearly stated principles. IND-AS are based on sound and clearly stated principles, and therefore IND-AS are said to be principle based accounting standards. This contrasts with the accounting standards that are applicable on companies which IND-AS are not applicable, which are rule based accounting standards. जो AS खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में फॉलो जो कंपनीज करते हैं, दोज आर नॉट रूल बेस्ड, तो दीज आर rule based accounting standards, but IND-AS are principle based accounting standards. Underlying assumptions in IND-AS, underlying assumptions in IND-AS क्या है? The underlying assumption in IND-AS 101 are going concern assumption. It is assumed that life of the business is infinity, the activity will continue, the entity will continue its operation for an indefinite period, बिजनेस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। इट इज गोइंग कंसर्न assumption। देन सेकेंड होता है accrual assumption। accrual assumption होता है द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन accrual बेसिस। जब भी जो होता है तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल आज एंड व्हेन दे ऑकर एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन जब भी होता है तभी एक्रूअल बेसिस में लेते हैं। पैसे लेन देन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, पैसे तो बाद में आएगा या बाद में हम देंगे, पर जब भी हम सर्विस ले लिया या गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर लिया तभी सेल हो गया। ये होते हैं अंडरलाइंग assumption 1 and 2। देन नेक्स्ट होता है IND-AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर IND-AS आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट द एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर, तो ये बैलेंस शीट का assets are resources controlled by the enterprise as a result of past events and operations from which the future economic benefits shall flow to the enterprise। तो asset खरीद के बिजनेस में लगाने से वो asset जो काम करेगा, मशीन में चीज़ें प्रोडक्शन होगा, वो हमें रेवेन्यू ला देगा। देन उधारी स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट।
Liabilities are the obligations of the enterprise. तो liability होता है, liability are those obligations of the enterprise from the past events and operations which shall result in outflow of resources. पैसा चला जाएगा, मतलब एसेट खरीदेंगे, सपोज मशीन खरीदेंगे उधार पे, तो बाद में पैसा चला जाएगा, तो पास्ट रिजल्ट का ये एक्शन है लायबिलिटी, जिससे हमारा पैसा आउटफ्लो होगा। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? कैपिटल चेंज। इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो इक्विटी इज द कैपिटल, एसेट से लायबिलिटी माइनस करने में जो बचेगा वो ओनर का है। इट इज द रियल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर का एसेट का शेयर कैपिटल का एक्चुअल वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडिंग रहेगी तो पर शेयर का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज एक्चुअल और इंट्रिंसिक वैल्यू। देन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपैरेटिव स्टडीज, देन स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थर्ड वन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट क्या है? A statement of a comprehensive income includes two separate statement, दो स्टेटमेंट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट एंड ए कॉमन ए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर प्रिपेयर्ड, दो बनता है। एक इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है। द स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकनसाइल्स द इनकम और लॉस as per income statement, which total comprehensive income, which with total comprehensive income. The elements or contents of the statement are, इस स्टेटमेंट का एलिमेंट और कंटेंट क्या क्या होता है ना, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब सेल्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस का सेल परचेज से, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑल्सो। अगर वैल्यू एसेट का बढ़ गया तभी भी हमारा रेवेन्यू आ गया, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर उधर ही घट गया तभी भी हमारा रेवेन्यू हो गया। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। रेवेन्यू शेयर होल्डर का पैसे को बढ़ाता है, इक्विटी को, कैपिटल को बढ़ाता है। एक्सपेंसेस होता है खर्चा। इट इज ए डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस ए लायबिलिटीज, उसका उल्टा। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा या एसेट घटेगा या खर्चा होगा बिजनेस का, बिजनेस ऑपरेशंस में कैश आउटफ्लो होगा, ये सारे खर्चा है, एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंडिचर या लॉस है, तो हमारा ये ओनर का कैपिटल को घटाएगा। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, पैसा आता है कहाँ, किधर जाता है, किधर जाता है, ये कि इसके अंदर से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद ये रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव के बाद ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसे किधर से आया, कहाँ गया, इसका स्टेटमेंट बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो बैलेंस शीट के एंड में देना पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट्स की वर्किंग नोट्स, कैसे बैलेंस शीट बनता है। देन वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, द लास्ट कॉन्सेप्ट। वैल्यूएशन प्रिंसिपल IND-AS अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी कॉमन कंपनी शैल वैल्यू इट्स फाइनेंशियल एसेट्स securities at fair value, whereas other assets can be valued at a historical cost or fair value। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है, जो कन्वर्स्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के साथ कन्वर्स किया है, ये बताता है जो कंपनी शेयर्स दूसरे कंपनी में हेल्ड कर रखा है, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा फेयर वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में दिखाएगा बैलेंस शीट में। अदर एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू मर्जी, बट व्हिचएवर ऑफ द टू मेथड्स इज अडॉप्टेड शैल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। आइदर फेयर वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो एसेट के लिए लेंगे, जो एक लेंगे उसको कंस्टेंटली फॉलो करेंगे।
Fair value means the price that should be revised when an asset is sold or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. अगर हम वो asset को बेच देते तो हमें जो पैसे मिलता या कोई लाइबिलिटी को पे करते हो जितना पे करना होता तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट के डेट पे मतलब मार्केट वैल्यू पे एक्चुअली बेचना नहीं है उसी दिन पता करना है. स्टेटिंग डिफरेंटली अगर हम इसको डिफरेंटली बताएं इट इज ए प्राइस विच ए बायर वुड बी विलिंग टू पे. बायर वो पैसे देगा फॉर एन एसेट एंड सेलर वुड विलिंग टू एक्सेप्ट इट. फेयर वैल्यू वो होता है कितने पैसे देकर एसेट बायर खरीदेगा सेलर पैसे देगा वो फेयर वैल्यू दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में. हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ IND-AS in many cases fair value is estimated except in the case of a quoted financial securities for which valuation rules are notified. मतलब मैक्सिमम केस में फेयर वैल्यू को अंदाज लगाया जाता है एस्टिमेट किया जाता है एक्चुअली तो पता नहीं चलता बट कोटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं उसका उसी दिन का वैल्यू मार्केट में दिखता है. मतलब स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक प्राइस के हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जाता है. तो दैट इज कोटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. जो लिस्टेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उसका वैल्यू शेयर मार्केट में दिख जाता है तो वो वैल्यू में हम एसेट को वैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट को बाकी अदर एसेट्स को उसका वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे. एप्लीकेबिलिटी ऑफ IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे एप्लीकेबल होता है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कंपनीज. 1. कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में अगर लिस्टेड है तो IND-AS अप्लाई होगा. सेकेंड होता है कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर. 250 करोड़ और ज़्यादा का कंपनी होगा कैश कैपिटल तब उसमें अप्लाई होगा. अदर कंपनी जिनमें फॉलो IND-AS वॉलंटरली. बाकी कंपनीज का मन है मर्जी है कि IND-AS फॉलो करें. IND-AS विल अप्लाई ऑन द होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनीज ऑन व्हिच IND-AS अप्लाइज और इट इज वॉलंटरली अडॉप्टेड. कोई भी कंपनी के ऊपर IND-AS अगर अप्लाई हो रहा है या कोई कंपनी वॉलंटरली IND-AS फॉलो कर रहा है तो उस यही रूल सेम रूल उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी पे उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी पे उस कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी पे उस कंपनी का एसोसिएट कंपनी पे उस कंपनी का जॉइंट वेंचर कंपनी में अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा. IND-AS अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कैसे हम देखते हैं इसको. So far the number of IND-AS issued and notified under the Companies Act 2013 are 40. List of which is given here under. हमने लिस्ट दे रखा है तो you can see हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं IND-AS का रूल्स कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. This is all about today's class and all about this chapter.